Hello everyone, welcome back again. So student, today we will do our worksheet number 2 which are based on your chapter parts and wholes. Okay, so let's start from the first question and listen students, if you have any doubt in previous lectures just comment me in the comment section. Okay, so let's start from the question number 1, and that is write T for true and F for false statement. Okay, so in this question you have to write T for a true statement and write F for the false statement. So आपको right के लिए true लिखना है और wrong के लिए false लिखना है. So your first statement is 1/4 of a year is 4 months. It means the 1/4 part of a year is 4 months. Okay, एक साल का 1/4 part 4 months होता है. So you have to check that it is correct or not. Okay, so here is the answers. So let's check it is correct or not. 1/4 of a year. Okay, so students, the meaning of off, okay, जहाँ पर भी आपको off दिखेगा it means that is multiplication. Clear? off का meaning हमेशा क्या होगा? multiply. Clear? जहाँ पे भी आपको क्या है, आपको fractions terms को solve करना है, वहाँ पे off का meaning होगा multiply. So here the statement is 1/4 of a year. That means 1 year is equals to 12 months. Okay, 1 year में क्या होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं. So we will write here in place of a year 12 months. Okay, so 1 year is equals to 12 months. Now the meaning of is multiply. So here that is your multiply. So 1/4 of 12 months is equals to 1/4 into 12. Okay, so 1/4 into 12, here is your 1/4 into 12. Now 4 it's in denominator and 12 it's in numerator, so we can divide it. So 4 ones are 4 and 4 threes are 12. Okay, so our answer is 3 ones are 3. Clear? So the correct answer is 3 months, but here the statement is 4 months. Clear? So आपके जो 1 year होते हैं, 1 year के 1/4 पार्ट जो होता है वो आपके 3 months होते हैं, बट यहाँ पे 4 months मेंशन है. So we will write here F. Clear? Because it's false. Now come to the second part. 5/6 of a dozen is 10. Okay, we already know that 1 dozen means 12 items. Clear? 1 dozen में जो है आपकी हमेशा 12 चीज़ें आती हैं. Just suppose that 1 dozen banana means 12 banana, 1 dozen pencils means 12 pencils, and 1 dozen sharpeners means 12 sharpeners. Clear? So 1 dozen is related to 12 items. So let's check it is correct or not. So here is the solution. 5/6 of a dozen. So here 1 dozen means 12. Clear? So 5/6 of a dozen means 5/6 into 12. Okay, ऑफ की जगह पर हम मल्टीप्लाई लगा देंगे और 1 डजन की जगह हम लिखेंगे 12, बिकॉज 1 डजन इज इक्वल्स टू 12 आइटम्स. क्लियर? सो 1/6 into 12 is equals to 6 ones are 6 and 6 twos are 12. ओके, सो डिनोमिनेटर में हमारा है 1. क्लियर? डिनोमिनेटर में हमारा क्या है? 1. एंड इन न्यूमरेटर वी हैव 5 and 2. Okay, so 5 multiply by 2 is equals to 10. Okay, and 10/1 का means 10 ही होता है. क्लियर? सो हमारे क्वेश्चन में भी था कि 5/6 of a dozen is equals to 10, और हमारा आंसर भी आया है 10. इट मीन्स दैट स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, सो वी विल राइट हियर T. Now come to the third part, and that is 1/2 of a decade is 5. Okay, so first of all, what is the meaning of decade? Clear? 1 decade means 10. Okay, एक decade में आपके जो होते हैं 10 years होते हैं या फिर 10 numbers होते हैं. So 1 decade is related to 10 number, just like 1 dozen is equals to 12 items. That similarly 1 decade is equals to 10. Clear? So 1/2 of a decade is 5. So let's check is it correct or not. So 1/2
of a decade, and 1 decade is equals to 10, and of, in place of we will write multiply. So that is 1 upon 2 multiply by 10. Here again 2 is in numerator and 10 is in denominator. Again 2 in the denominator and 10 in the numerator, so 2 1s are 2, 2 5s are 10, and here the answer is 5 1s are 5. Okay, so it means our answer is correct and that is true. Clear? आपका 1 डिके में 10 years होते हैं and 10 का हाफ होता है 5, so half of a decay is 5 and that is true. Now come to the next part, and that is 2 upon 3 of an hour is 40 minutes. Clear? 1 hour का 2 upon 3 part जो होता है वो 40 minutes होता है. So let's check it is correct or not. So students, we know that 1 hour is equals to 60 minutes. आपके 1 hour में क्या होते हैं? 60 minutes होते हैं. So in place of 1 hour we will write here 60 minutes. हम आपको इसको 60 minutes में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ आंसर जो है वो मिनट्स में गिवन है. क्लियर? सो हम हार्स को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. 2 upon 3 into 60 minutes is equals to 3 1s are 3 and 3 20s are 60. Okay, 3 2s are 6 and 0 ka 0. So here the answer is 20 into 2 and that is 40 minutes. So again our answer is true. हमारा ये आंसर भी क्या है? True है. So now come to the next question, and that is 4 upon 5 of a rupee is 80 पैसा. 1 रुपये का 4 upon 5 पार्ट जो होता है वो 80 पैसे होते हैं. So students, as you can see here, that is rupees and here the answer is in पैसा. So first we will convert rupees into पैसा. Why? Because we want the answer into पैसा. Let's solve the question, and here is the solution. 4 upon 5 of a rupee is equals to 4 upon 5 into 100. Why 100? Because 1 rupees is equals to 100 paisa. Clear? So in place of 1 rupees we will write 100. So now 5 ones are 5 and 5 20s are 100 and 24s are, that is 80 paisa. So again the answer is correct and the statement is true. Okay, so we will write here T. Now next question is 3 upon 5 of a kilogram is 800 grams. Okay, 1 किलो का 1 kg का 3 upon 5 पार्ट जो होता है वो 800 grams होता है. So we already know that 1 kg is equals to 1000 grams. 1 kg में क्या होते हैं? हमारे 1000 grams होते हैं. So in place of a kg we will write thousands gram. Clear? So we can write it 3 upon 5 of a kg is equals to 3 upon 5 into 1000, and here 5 ones are 5 and 5 200s are 1000. Clear? 5 2s are 10 and 2 zeros यहाँ पे left हो जाएंगे तो answer is 200. Clear? So our solution is 3 upon 5 into 1000, and here 5 ones are 5 and 5 200s are 1000. Now 200 multiplied by 3 and the answer is 600 grams. Clear? So our correct answer is 600 grams, but here they given us 800. It means this statement is wrong and our answer is false. Clear? Now come to the next part, and that is half of a day is 10 hours. Clear? So 1 day is equals to 24 hours. आपके क्या होते हैं? 1 day में 24 hours होते हैं. So in place of a day we will write 24 hours. So half of 24 hours is 12 hours. Clear? आपके 24 hours का half जो होता है वो होता है 12, but here they given us 10. It means this statement is also false. Now come to the next part of the question number 1, and that is 1 upon 4 of a liter is 250 ml. 1 लीटर का 1/4 पार्ट 250 ml होता है. So students, you already know 1 liter is equals to 1000 ml. 1 लीटर में आपके क्या होते हैं? 1000 ml होते हैं. Just like 1 kg is equals to 1000 grams. Similarly 1 liter is equals to 1000 ml. Okay, so in place of 1 liter we will write 1000, and 1 upon 4 of 1000 ml is 4 ones are 4, 4 2s are
8, यहाँ पे आपके 2 लेफ्ट होंगे, ये हो जाएगा 20 एंड 4 5 ज़ा 20 एंड 0 का 0। आप इसको 4 से डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो। 4 2 ज़ा 8, 2 लेफ्ट, here 0, 4 5 ज़ा 20, okay, and 1 0 is left here, so we will write here and the answer is 250. Okay, so student, that is your question number 1. I hope you are able to understand it. If you have any confusion, just watch this video 2 times, okay, and still if you have any confusion, just comment with the comment section. Now come to the second question, and your second question is, Mitu and Vikas each ate 5/2 parts of a cake. Okay, so Mitu and Vikas दोनों ने क्या है, एक केक के 5/12 केक को खाया है। क्लियर? सो मीतू ने भी 5/12 पार्ट खाया है एंड विकास ने भी 5/12 पार्ट खाया है। क्लियर? वट पोर्शन ऑफ द केक वॉज लेफ्ट, तो कितना केक जो है वो बच गया है। क्लियर? सो योर आंसर इज हियर एंड हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस 2 मेथड्स। ओके, आप इन दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सपोज़ आपको अगर फर्स्ट मेथड समझ में नहीं आता तो आप सेकंड मेथड को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको सेकंड मेथड में कन्फ्यूजन है तो आप फर्स्ट मेथड से कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में हमने जो मेथड यूज़ किया है वो है आपका फर्स्ट मेथड, और यहाँ पे हम सेकंड मेथड को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं बिकॉज इन हायर क्लासेस सेकंड मेथड इज़ यूज़फुल टू ऑल ऑफ़ यू। क्लियर? सो हम यहाँ पे सेकंड मेथड को भी अभी से जान लेंगे। So let's do this question by first method. Okay, so here is the solution. Mitu ate cake equals to 5/12. मीतू ने जो क्या है केक का 5/12 खाया है पार्ट। विकास ate cake equals to 5/12 और विकास ने भी 5/12 पार्ट खाया है। सो मीतू एंड विकास ate cake together 5/12 प्लस 5/12। ओके, केक के 5/12 पार्ट को मीतू ने भी खाया है एंड इक्वल पार्ट को विकास ने भी खाया है। तो दोनों ने मिल के जो केक खाया है दैट इज़ 5/12 प्लस 5/12। हेयर योर डिनोमिनेटर्स आर सेम। क्लियर? इट मीन्स हम इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो पहले हम इनको सेम करते फिर हम इसे ऐड करते। क्लियर? हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिना सेम डिनोमिनेटर के नहीं करेंगे। रिमेंबर दैट अगर आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो आप इनको डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। पहले आपके डिनोमिनेटर्स को सेम होना ज़रूरी है, देन वी विल सब्ट्रैक्ट एंड डिवाइड इट, देन वी विल ऐड और सब्ट्रैक्ट इट। ओके, सो हेयर our denominators are same, so there is no need to do that. So in place of 12 we will write 112 because both digits have same denominator. Now 5 plus 5 and that is equals to 12, so our answer is 10/12. okay, दोनों ने टोटल जो है 10/12 पार्ट्स को खाया है। इट मीन्स आउट ऑफ 12 पार्ट्स दे एट 10 पार्ट्स, दोनों ने 12 में से 10 पार्ट्स को खा लिया है। सो अगर हम इसको एक डायग्राम से समझें, सपोज दैट इज़ योर केक एंड इज़ डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, आपने एक केक लिया, आपने उस केक को 12 पार्ट्स से डिवाइड कर दिया। जो मीतू हैं उन्होंने उसके 5 पार्ट्स को क्या कर लिया है, खाया है। सो दैट इज़ योर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 पार्ट। क्लियर? और जो विकास है उन्होंने भी 5 पार्ट्स को खाया है, 1 2 3 4 5। क्लियर? सो आपके 5 पार्ट्स विकास खा चुके हैं एंड 5 पार्ट्स मीतू खा चुके हैं। आउट ऑफ 12 5 मीतू एंड 5 विकास। सो आपके कितने पार्ट्स यहाँ पे रिमेनिंग है, जस्ट काउंट इट, दिस वन 1 एंड 2। सो आउट ऑफ 12 आपके 2 पार्ट्स जो हैं वो बच गए हैं। क्लियर? 12 में से आपके 2 पार्ट्स बच गए हैं। इट मीन्स आपका केक का कितना पोर्शन बच गया है, 2/12। क्लियर? सो योर आंसर इज लेफ्ट पोर्शन ऑफ द केक इज 2/12। ओके, सो फर्स्ट मेथड में हमने क्वेश्चन बाय दी डायग्राम सॉल्व किया है। बट स्टूडेंट, जब आपके बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स, बड़े बड़े फ्रैक्शनल वैल्यूज़ आ जाती हैं तो हम हर बार एक ग्राफ के थ्रू या एक डायग्राम के थ्रू उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्लियर? सो हमें एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल मेथड चाहिए होगा। सो दैट इज़ योर अनदर मेथड सेकेंड,
and in this method we will solve this question mathematically, okay, without any graph or diagram. So let's start it. मीतू एंड विकास एट केक टुगेदर, दैट इज़ 5/12 प्लस 5/12. ओके, दोनों ने मिलकर जितना केक खाया है हमने वो पहले भी सॉल्व किया है, सो हम इसको यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहे हैं, दैट इज़ 10/12. ओके, सो स्टूडेंट जो आपका केक था वो तो पूरा था ना, क्लियर. सो हम इसको 1 केक ले सकते हैं, केक तो एक ही था, क्लियर. अब उस एक केक का आपने 10/12 पार्ट जो है वो कंज्यूम कर लिया, आपने 1 केक के 10/12 पार्ट को खा लिया है, क्लियर. सो अगर हमें ये जानना है कि कितने पार्ट्स बच गए हैं, तो हम अगर पूरे केक में से 10/12 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें पता लग जाएगा, क्लियर, कि कितना केक जो है अभी बचा है. इसको दोबारा से समझ लेते हैं. आपका केक जो है उसकी जो वैल्यू है वो 1 है, वो पूरा एक केक है, क्लियर. सो उसको हम 1 मान लेंगे. अब उस 1 केक के आपने 12 पार्ट किए, क्लियर, और उसके 10 पार्ट्स जो हैं मीतू एंड विकास दोनों मिलके उसको खा चुके हैं. अब उस केक में कितने पार्ट्स जो हैं वो बच गए हैं, या केक का कितना पोर्शन लेफ़्ट रह गया है. सो अगर हम पूरे केक में से, ओके, पूरे केक में से अगर हम वो केक को सब्ट्रैक्ट कर दें जो हम खा चुके हैं, सब्ट्रैक्शन हम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि उतना पार्ट हम ले चुके हैं. तो अगर हम उतने पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें वो पार्ट मिल जाएगा जितना बचा है, क्लियर. आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज़ आपके पास पहले 4 टॉफ़ीज़ थी, आपने उसमें से 2 खा ली, तो वो कितनी बची, 4 - 2, दैट इज़ इक्वल्स टू 2. ओके, सो लेफ्ट पोर्शन ऑफ द केक इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस 10/12. 1 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है आपके एक केक को. 1 माइनस 10/12 को हम कैसे सॉल्व करेंगे. सो स्टूडेंट्स, हमने पहले ही डिस्कस किया है कि अगर आप सब्ट्रैक्शन या एडिशन करना चाहते हैं तो आपके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए. सो आपके 1 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 मान लेंगे. 1 1 से वैसे भी 1 होता है, क्लियर. तो अगर यहाँ पे 1 लिख भी लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो हम यहाँ पे मानेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, 1 है, क्लियर. अब यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर 12 चाहिए और आपके यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, तो ये 1 12 कैसे बनेगा. यस, अगर आप इस 1 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है, तो ये 12 1 से 12, यानी कि आपको डिनोमिनेटर 12 हो जाएगा. बट स्टूडेंट्स रिमेंबर वन थिंग, आप जो भी एक्टिविटी या जो भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आप डिनोमिनेटर में करेंगे, सेम वही आपको न्यूमरेटर में भी करना है, क्लियर. या फिर अगर आप कोई भी चेंजेस नोमिनेटर में करेंगे तो वही चेंजेस आपको डिनोमिनेटर में भी करने हैं, तभी इन दोनों का रेशियो इक्वल रहेगा, क्लियर. सपोज दैट आपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया लेकिन न्यूमरेटर को ऐसे ही छोड़ दिया, तो आपकी जो है वैल्यूज़ गड़बड़ हो जाएंगी. सो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में 12 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज हमें डिनोमिनेटर 12 चाहिए, हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करने के लिए सेम डिनोमिनेटर चाहिए और डिनोमिनेटर 12 है. तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर को अगर 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम न्यूमरेटर को भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर. सो जैसे कि हमारी फ्रैक्शनल टर्म है 1/1, अगर आप इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाती है 12/12, क्लियर. सो नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 12/12 बाय 10/12. ओके, सो डिनोमिनेटर्स आर सेम, हमारे डिनोमिनेटर्स सेम हो चुके हैं. सो वी विल राइट हियर 12, ओके, and in numerator there is 12 minus 10. So here is our 12 minus 10. So that's our final result, and that is 12 minus 10 is equals to 2, and denominator is 12. Okay, so again we got the same answer, and that is 2/12. हमारे पहले मेथड से भी यही आंसर आया था कि 2/12 पोर्शन आपका बच गया है, और फाइनल आंसर भी हमारा यही है. और सेकंड मेथड से भी हमारा यही आंसर आया है कि 2/12 पार्ट केक का बच गया है. एंड स्टूडेंट्स, आप इसको शॉर्ट टर्म में अगर लिखना चाहें तो आप इसको 1/6 भी लिख सकते हैं. हाउ, लेट्स चेक. 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12. ओके, सो आवर आंसर इज़ 1/6 ऑल्सो. आप इसको 2/12 भी लिख सकते हैं, आप इसको 1/6 भी लिख सकते हैं, क्लियर. दोनों ही सेम है. 2 का 12 पार्ट, 12 का 2 पार्ट, या 6 का 1 पार्ट, 12 का 2 पार्ट या 6 का 1 पार्ट, दोनों ही सेम कंडीशन है. नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 3. राहुल bought 7
1/2 kg of rice and Reena about 15/4 kg of rice. ओके, राहुल जो है 7/1/2 kg ले रहे हैं एंड रीना जो है वो 15/4 kg राइस जो है वो खरीद रही है. क्लियर. नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ मच राइस डिड दे बाय टुगेदर. दोनों ने मिलके कितना राइस खरीदा. क्लियर. एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज़ हु बाउट मोर राइस एंड बाय हाउ मच. और किसने ज़्यादा राइस खरीदा है और कितना ज़्यादा खरीदा है. क्लियर. सो हेयर इज़ द सॉल्यूशन ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 2. राहुल बाउट राइस इज इक्वल्स टू 7/1/2 kg. ओके, तो उन्होंने 7/1/2 kg राइस खरीदा है. अब ये आपकी क्या है, मिक्स फ्रैक्शनल टर्म है. ठीक है, ये आपके मिक्स फ्रैक्शन में है. अब आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे. सो इसका मेथड है, आप इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई और जो आंसर आएगा उसमें आप इसे करेंगे ऐड. क्लियर. आपकी जो आगे टर्म है वो आपके डिनोमिनेटर के संग होती है मल्टीप्लाई और जो आपका रिजल्ट आता है वो आपके न्यूमरेटर के संग हो जाता है ऐड. क्लियर. So here our denominator is 2, so we will multiply 7 by 2 and that is 7 into 2 and after that we will add our numerator with the result. Clear. So 7 2s are 14 and 14 plus 1 15. Okay, 7 2s are 14 and 14 plus 1 15. So our answer is 15/2 kg. Clear. It means राहुल जो है उन्होंने 15/2 kg जो है राइस को ख़रीदा है एंड रीना है उन्होंने 15/4 kg राइस ख़रीदा है. सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू ऐड बोथ अमाउंट्स. ओके, ये आपका पूछ रहे हैं कि दोनों ने कितना राइस ख़रीदा है. राइस दे बाउट टुगेदर एंड दैट इज़ 15/2 जो आपके क्या है राहुल ने ख़रीदा है प्लस 15/4 जो आपके रीना ने ख़रीदा है. तो दोनों के अमाउंट को अगर आप ऐड कर देते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि दोनों ने मिलके कितना राइस ख़रीदा है. क्लियर. So 15/2 plus 15/4. So student again you can see here denominators are different. यहाँ 2 है, यहाँ 4 है. क्लियर. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर्स को सेम करना है. क्लियर. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक ऐसी डिजिट ढूंढेंगे जो दोनों के टेबल में आती है, 2 के भी और 4 के भी, और आप इसमें एलसीएम करके भी देख सकते हैं. क्लियर. 4 and 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2 एंड यहाँ पे 1 का 1 है ही. तो आपका जो एलसीएम करके आंसर आया है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 2 2s are 4. इट मीन्स 4 एक ऐसी डिजिट है जो 2 के टेबल में भी है और 4 के टेबल में भी है. वैसे तो आपकी 8 भी एक ऐसी डिजिट है जो 2 और 4 दोनों के टेबल में आती है, बट हम छोटी डिजिट लेना ज़्यादा प्रेफर करेंगे. क्लियर. सो हम यहाँ पे ले रहे हैं 4, इसलिए हम एलसीएम करते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल कि हमें सबसे छोटी ऐसी डिजिट मिले जो दोनों में कॉमन हो. क्लियर. सो यहाँ पे तो ऑलरेडी 4 है, यहाँ 4 बनाने के लिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज 2 2s are 4 होता है. क्लियर. अगर हम सपोज दैट यहाँ पे 8 बना रहे होते तो हम फिर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते क्योंकि 2 4s are 8 होता है. क्लियर. सो हेयर वी ऑलरेडी हैव 4 और यहाँ पे 4 बनाने के लिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और जो हम डिनोमिनेटर के साथ करेंगे सेम वही हम न्यूमरेटर के साथ करेंगे. सो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो it becomes 15 2s are 30 and 2 2s are 4. Okay, so 15/2 becomes 30/4. क्लियर. और दोनों ही सेम है. अगर आप 30 और 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो दोबारा आपका 15/2 ही आएगा. क्लियर. सो आप 15/2 लिखेंगे, 30/4 लिखें, दोनों ही कंडीशंस सेम है. 4 का 30 पार्ट और 2 का 15 पार्ट, बोथ द सेम. सो नाउ we have same denominator, so let's add it. 30 plus 15 and that is equals to 45 and denominator is 4, so our answer is 45/4 kg. it means दोनों ने मिलके जो है वो 45/4 kg राइस खरीदा है. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज़ कि किसने ज़्यादा राइस खरीदा है और कितना ज़्यादा राइस खरीदा है. सो अगर आप यहाँ पे देखें तो राहुल का जो राइस का अमाउंट है वो है 30/4 kg. ओके, अमाउंट ऑफ राइस बाउट बाय राहुल इज इक्वल्स टू 30/4 एंड अमाउंट विच इज़ बाउट बाय रीना इज इक्वल्स टू 15/4. जो रीना है उन्होंने जो है 15/4 kg राइस को ख़रीदा है. क्लियर. सो एक ने 4 के 30 पाउट
एक ने 4 के 30 पार्ट को ख़रीदा है और एक ने 4 के 15 पार्ट को ख़रीदा है। सो ऑब्वियसली 30 आपका क्या है, ज़्यादा है। क्लियर। सो इट मीन्स राहुल जो है उन्होंने ज़्यादा पार्ट ख़रीदा है। 4 के 30 पार्ट को ले आप और 4 के 15 पार्ट को ले तो कौन सा ज़्यादा है, ऑब्वियसली 30। और आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर आप 30 को 4 से डिवाइड करेंगे और 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली जब आप 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा बड़ा अमाउंट आएगा। सो राहुल जो है उन्होंने ज़्यादा राइस ख़रीदा है। राहुल बाउट मोर राइस देन रीना एंड दैट इज़, अब उन्होंने कितना ज़्यादा राइस ख़रीदा है उसके लिए हमें क्या करना है, राहुल के राइस से रीना के राइस को निकाल देना है। क्लियर। राहुल ने जितना राइस ख़रीदा है उसमें से हम रीना के राइस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा राहुल ने राइस ख़रीदा है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज़ मेरे पास 4 टॉफ़ीज़ हैं और आपके पास 3 टॉफ़ीज़ हैं, तो मेरे पास आपसे कितनी ज़्यादा टॉफ़ी हैं, एक ज़्यादा है। आपके पास 3 है, मेरे पास 4, इट मीन्स मेरे पास एक टॉफ़ी ज़्यादा है। सो 4 - 3 = 1। अगर आप मेरी कैंडीज़ में से अपने कैंडीज़ को सब्ट्रैक्ट कर दें तो उतनी कैंडीज़ बच जाएंगी जितनी मेरे पास ज़्यादा है। क्लियर। सो सेम हम यहाँ पे करेंगे, हम राहुल के अमाउंट में से, राइस के अमाउंट में से रीना के पास जितना अमाउंट है उतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमें ये पता लग जाएगा कि राहुल के पास कितना ज़्यादा राइस है। सो हेयर the numbers are 30/4 and 15/4. Denominators are same, so 30 - 15 = 15 and that is 15/4 kg. It means Rahul bought more rice than Reena and that is 15/4 kg. उनके पास 15/4 kg, 1 kg का 15/4 पार्ट ज़्यादा है as compared to Reena. Okay. Now come to the next question, question number 4, and that is write the fractions given below which is equivalent to 1/2, 2/3, 3/4, 2/5 and 1/3। आपको ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं जिनकी वैल्यू जो है 1/2, 2/3, 3/4, 2/5 एंड 1/3 के इक्वल हो। क्लियर। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है पहले हम उसे समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बताया इसके प्रीवियस क्वेश्चन में कि आपका जो 15/2 है और जो 30/4 है दोनों ही सेम है। 2 का 15 पार्ट हो या 4 का 30 पार्ट हो, दोनों ही सेम है। अब हम इसको समझते हैं कि ये कैसे सेम है, क्योंकि ये दोनों जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्लियर। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, जब आप किसी एक फ्रैक्शनल टर्म को शॉर्टेस्ट टर्म में कन्वर्ट करें और वो टर्म्स जो हैं आपस में इक्वल आती हैं तो उसे बोलते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे कि आपका यहाँ है 15/2। अब ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिसमें 2 भी आए और 15 भी आए। क्लियर। सो 15/2 जो है ये अपने आप में ही सबसे शॉर्टेस्ट टर्म है। क्लियर। हम इसको इससे ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते हैं। अब हम आते हैं 30/4 पे। क्लियर। जो आपका 30/4 है, अगर आप इसको डिवाइड करने चाहें तो दोनों का आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। आपका डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों ही 2 से डिवाइड हो सकते हैं। क्लियर। तो जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे सो इट बिकम्स 2 बिकॉज 2 2s are 4 एंड इट बिकम्स 15 बिकॉज 2 1s are 3 और यहाँ पे 1 बच जाएगा, ये 10 हो जाएगा एंड 2 5s are 10। सो जब आप 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर होगा 15। सो एज यू कैन सी हियर our numerator is 15 and here also our numerator is 15 and denominator is 2 and here also that is 2. So it means both are the equivalent fraction. So you can say that 15/2 is the equivalent fraction of 30/4. ओके। 15/2 जो है वो 30/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब हम इसको एक सेकेंड अगर एग्जांपल से समझना चाहें, सो सपोज़ दैट आपके पास जो है 1/2 है, 2 का 1 पार्ट। क्लियर। और दूसरी तरफ आपके पास है 4 का 2 पार्ट। क्लियर। सो 2 के जो 1 पार्ट हैं वो बराबर हैं 4 के 2 पार्ट के। क्लियर। आपके पास एक केक है, आपने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, उसका एक पार्ट ले लिया। क्लियर। सो आपने क्या है उसका हाफ पार्ट ले लिया है। अगर हम इसको इस तरीके से डिवाइड करें कि आपने केक को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया और तब उसके 2 पार्ट ले लिया तो ये भी आपका हाफ पार्ट है। क्लियर। सो ये तो आपका हुआ इमेज के थ्रू। अगर आप इसको मैथमेटिकली समझना चाहें कि हाउ 1/2 इज इक्वल्स टू 1/4, सो आपको क्या करना है, इसको शॉर्टेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये तो ऑलरेडी आपके शॉर्टेस्ट टर्म में 1/2 तो दोबारा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है। अब हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट टर्म को। सो हेयर दैट इज़ योर 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4। सो आपका डिनोमिनेटर 1 आ गया, यहाँ भी आपका डिनोमिनेटर 1 है। आपका डिनोमिनेटर 2 आ गया, यहाँ भी आपका डिनोमिनेटर 2 है। सो वी कैन से दैट 1/2 इज इक्वल टू 2/4, क्योंकि जब हम 2/4 को
शॉर्टेस्ट टर्म में कन्वर्ट करके लिखते हैं तो वो आपका 1/2 ही बनता है। क्लियर? सो स्टूडेंट, ये तो आपका फर्स्ट मेथड है कि आप कट करके देखें, आप इसको शॉर्टेस्ट टर्म में कन्वर्ट करके देखें और आपको पता लग जाएगा कि ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। अब अगर आप सेकंड मेथड में जाएं कि हम कैसे चेक करेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है, तो उसके लिए आपको करनी होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट विद another method, so here is your another method. Suppose you have 1/2 and 2/4 and you want to check that it's equivalent or not, so you have to do one thing, just do cross multiplication. Clear? What is the meaning of cross multiplication? You have to multiply one denominator with another numerator and same condition for other digits also. आपको क्या करना है, एक डिनोमिनेटर को दूसरे फ्रैक्शन के नोमिनेटर से जो आपके अपोजिट साइड में है और अनदर डिनोमिनेटर को उसके दूसरे वाले नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। दैट इज़ योर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो हियर वी हैव 1/2 and 2/4. नाउ जस्ट टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो इट बिकम्स 1 into 4 and 2 into 2. Okay, that is your 1 into 4 and that is your 2 into 2. So 4 1s are 4 and 2 2s are 4. Okay, so your left hand side is equals to right hand side, so you can say that that's equivalent fraction. Okay, अगर आपके दोनों टर्म्स जो हैं इक्वल आ जाती हैं तो ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसको आप दूसरे एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। सपोज यू हैव 3/9 and 1/3. Okay, so now just do cross multiplication. It becomes 3 into 3, 3 into 3 and equals to 9 into 1, 9 into 1. So 3 3s are 9 and 9 1s are 9. So again left hand side is equals to right hand side, so that is your equivalent fraction. Clear? Now suppose our next question is, that is your 7/20 and here you have 3/10. Okay, and you have to check that these two fractional terms are equivalent or not. So again just do cross multiplication. So 7 into 10 and here you have 3 into 20. So 7 10s are 70 and 3 2s are 6 and 0 का 0, that is 60. So here your left hand side is not equals to right hand side, so it means 7/20 and 3/10 both are 3/10, they are not equivalent. Okay, 7/20 and 3/10 they are not equivalent. ये equivalent आपस में नहीं है, they are not equivalent fraction. क्लियर? सो आपके पास 2 मेथड हैं, या तो आप उसको शॉर्टेस्ट टर्म में कन्वर्ट करके चेक करिए इक्विवेलेंट है या नहीं, या आप उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। नाउ अगर आपको क्या है, कोई फ्रैक्शनल टर्म दी है, सपोज 1/2, आपको इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। फर्स्ट हम क्या चेक कर रहे थे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं, हमें ये चेक करना है। बट अगर आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हो कि इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप जनरेट कीजिए या इसका 2-3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बता दीजिए जो 1/2 के इक्वल हों या 3/5 के इक्वल हों, तो आप कैसे निकालेंगे? तो स्टूडेंट, जब हम उसको शॉर्टेस्ट टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी डिजिट को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। क्लियर? हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, वो शॉर्टेस्ट टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको उसका करना है सेम उल्टा। अब आपको उसका क्या करना है, जस्ट उल्टा। आपको किसी एक सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कर देना है मल्टीप्लाई। क्लियर? सो सपोज दैट मैं 1/2 के एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को बनाना चाहती हूँ, तो हम यहाँ पे करेंगे सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। सो हेयर आई एम गोइंग टू टेक द डिजिट 5. ओके, सो 5 1s are 5. Okay, 5 1s are 5 and 5 2s are 10. Clear? So students, here 5/10 is the equivalent fraction of 1/2. आप इसको चेक भी कर सकते हैं। 5 1s are 5 and 5 2s are 10. अगेन आपका 1/2 आ गया है। इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। क्लियर? सो हेयर इज़ योर फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/2। अगर आप इसका कोई दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं, सपोज 1/2 के आपको कोई दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, तो मैं किसी दूसरे डिजिट से न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देती हूँ। सो हेयर आई एम गोइंग टू टेक 3. 3 1s are 3, 3 2s are 6. So here 3/6 is the equivalent fraction of 1/2. 3/6 जो है वो 1/2 का equivalent fraction है।
ऐसे ही आप 3 की जगह 4 या फिर 6, 7, 8 इनसे मल्टीप्लाई करें, बट कंडीशन ये है कि आपको सेम नंबर से ही नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? सो आई होप आप समझ गए होंगे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे। अगर आप अभी भी नहीं समझे हैं तो कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो इन क्वेश्चन नंबर 4 यू हैव टू डू सेम थिंग। क्लियर? आपको क्या करना है, आपको इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं। किनके? 1/2, 2/3, 3/4, 2/5 एंड 1/3। आपको इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जनरेट करने हैं। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मीनिंग आप समझ गए होंगे। आपके फ्रैक्शंस जिनके रेशो सेम होते हैं वो आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। सो स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट। सो हियर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू 2/4। हमने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 1s are 2, 2 2s are 4, so आंसर इज 2/4। अनदर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू 3/6। क्लियर? डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया 3/6। क्लियर? नाउ सेकंड पार्ट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3। क्लियर? सो आप 2 को और 3 को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा। सो यहाँ पे हमने इसके फर्स्ट पार्ट में किया है 4 से मल्टीप्लाई। 4 2s are 8, 4 3s are 12। सो द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3 इज 8/12। Another equivalent fraction of 2/3 is 10/15. Okay, numerator is multiplied by 5 and denominator is multiplied by 5, so 5 2s are 10 and 5 3s are 15. So another equivalent fraction of 2/3 is 10/15. Now third part is 3/4. so यहाँ पे हमने 3 से इसको numerator और denominator को multiply किया है, so 3 3s are 9 and 3 4s are 12, so our answer is 9/12। 9/12 जो है वो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 3/4 के। अगेन हियर डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 6, तो 3 6s are 18 and 6 4s are 24, so 18/24 इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/4। क्लियर? एंड स्टूडेंट, जब आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे तो आपको ये सब कुछ करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक हियर आई एम डूइंग इट डायरेक्टली। 2 5s are 10 and 5 5s are 25। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, सो हियर द आंसर इज 10/25। अनदर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5 इज 2 6s are 12 and 5 6s are 30। दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है। A last part of this question is 1/3। so 1 2s are 2 and 3 2s are 6, and another is 1 7s are 7 and 3 7s are 21, so 7/21 is the another equivalent fraction of 1/3। and students, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सेम यही आंसर्स को लिखें, आप थ्रू 3 4 5 6 7 8 किसी भी नंबर से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, now come to the next part, that is your question number 5। check whether the fraction given in each part are equivalent or not। so student, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कैसे आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे और कैसे आप उनको चेक करेंगे, तो आपको इस पार्ट में क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को चेक करना है कि 8/16 इज इक्वलेंट टू 9/18 और नॉट, 9/99 और 12/132 इज इक्वलेंट और नॉट, 9/13 और 5/11, 21/28 और 27/36 are equivalent or not। okay, so let's start from the first one and remember that here we have two method। okay, आप यहाँ पे दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको शॉर्टेस्ट टर्म में सॉल्व करके आप इसको शॉर्टेस्ट टर्म में कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं, या फिर आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आपको जो भी मेथड बेटर लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि हमारे पास है 8/16 एंड 9/18। सो आपको पता ही है 16 8 के टेबल में आते हैं और 89 के टेबल में आते हैं, हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि 18 8 और 16 9 तो ये बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा, तो मैं इसको शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट करके कर रही हूँ। 8 1s are 8, 8 2s are 16, 9 1s are 9, 9 2s are 18, दोनों में 1/2 है, इट मीन्स दैट इज़ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्लियर? नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट।
दैट इज़ 9/99 एंड 12/132. सो अगेन स्टूडेंट, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से करते हैं तो ये बहुत लेंथी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो हम इसको शॉर्ट टर्म में करते हैं. 9 1 9, 9 1 9, 9 1 9, 12 1 12, 12 1 12, 12 1 12. Clear? So again that is your equivalent fraction. Now come to the third part of question number 5. And here you have 9/13 and 5/11. So students, you already know these are the odd numbers. Okay, और ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिसमें 9 और 13 साथ में आए या 5 और 11 साथ में आए, तो ये आपके क्या है, शॉर्टेस्ट टर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं. सो 9/13 एंड 5/11 दोनों आपस में इक्वल नहीं है. सो दीज आर द इनइक्वलेंट फ्रैक्शंस. ओके, now come to the fourth and the last part of your question. And here you have 21/28 and 37/26. Clear? So students, ऐसा कोई टेबल जिसमें 21 एंड 28 दोनों आता हो? यस. 7 3s are 21 and 7 4s are 28. एंड ऐसा कोई टेबल जिसमें 27 एंड 36 आते हो? यस. 3 9s are 27 and 3 1s are 3 and 3 2s are 6. क्लियर? आप 3 की जगह 9 से भी कर सकते हैं. क्लियर? 3 की जगह आप यहाँ पे 9 भी ले सकते हैं. हमने यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दिया, बट आप यहाँ पे 9 भी ले सकते हैं. 9 3s are 27 एंड 9 4s are 36. क्लियर? सो यहाँ पर भी आपका 3/4 है एंड यहाँ पर भी आपका 3/4 है. सो दीज आर द इक्वलेंट फ्रैक्शंस. क्लियर? आप इसको सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से. उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दिस मेथड्स, सो डू इट बाय इट. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 6. सॉल्व द फॉलोइंग. Okay, so in your first question you have to find out the 1/4 part of 500 rupees. 500 rupees का 1/4 part आपको निकालना है. 1/3 part of 750 rupees, 1/5 part of 2 rupees, 7/5 part of 100 rupees. 90 second you have to convert it in minutes. 80 पैसा 1 रुपीज़ का कितना पार्ट होता है? 8 hours 1 डे के कितने पार्ट्स होते हैं? 1 डे 1 वीक का कितना पार्ट है? 1/7 ऑफ 2100 ग्राम 1 kg का कितना पार्ट है? क्लियर? तो यहाँ पे आपको 2 टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं. एक में आपको नंबर्स के फ्रैक्शंस निकालने हैं और दूसरे में आपको निकालना है कि ये कितना पार्ट है, कितना फ्रैक्शनल टर्म है. सो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1. 1/4 of 500 rupees. Okay, so 1/4 in place of we will write here multiply. So 4 in the denominator and 500 in numerator. Okay, so हम इसको क्या करेंगे, तो हम 500 को कर देंगे 4 से डिवाइड और हमारा आंसर आएगा 125. इट मीन्स 1/4 ऑफ 500 रुपीज़ इज़ 125 रुपीज़. ओके, अगर आप 500 को 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हर किसी को 125 रुपीज़ मिलेंगे. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज़ 1/3 ऑफ 750. ओके, आपको 750 का 1/3 पार्ट फाइंड आउट करना है. सो इन प्लेस ऑफ ऑफ जस्ट राइट मल्टीप्लाई एंड अगेन जस्ट डिवाइड 750 बाई 3 एंड यू विल गेट 250. अगर आप 750 रुपीज़ को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो तीनों को 250 रुपीज़ मिलेंगे. क्लियर? सो आवर आंसर इज़ 250 रुपीज़. नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन दैट इज़ 2/5 ऑफ 2 रुपीज़. आपको 2 रुपीज़ के 2/5 पार्ट को फाइंड आउट करना है. सो स्टूडेंट्स, वी ऑलरेडी नो दैट 1 रुपीज़ इज़ इक्वल्स टू 100 पैसा. 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 2 रुपये में कितने होंगे? 200. क्लियर? सो हम 2 रुपीज़ की जगह लिख देंगे 200 पैसे. क्लियर? क्योंकि हम 2 को 5 से डिवाइड करेंगे, वो पॉइंट्स में आंसर आएगा. क्लियर? सो हम यहाँ पे लिखेंगे 200 पैसे इन प्लेस ऑफ 2 रुपीज़. नाउ जस्ट डिवाइड 200 बाई 5 एंड यू विल गेट 40. ओके, 5 4s are 20 and 0 का 0. Now 40 2s are 80. Okay, so it means 2/5 of 2 rupees is 80 पैसा. 2 रुपीज़ का 2/5 पार्ट जो होता है वो होता है 80 पैसे. Now come to the next part and that is 7/5 of 100 rupees. आपको 100 रुपीज़ के 7/5 पार्ट निकालने हैं. So again divide 100 by 5.
सो 5 2 ज़ा 10 एंड यहाँ पे एक 0 बचेगा, 0 का 0 एंड 27 ज़ा 140. सो 7/5 पार्ट ऑफ 100 रुपीज़, दैट इज़ 140 रुपीज़. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, 90 सेकेंड्स. ओके, सो आपको फाइंड आउट करना है कि 90 सेकेंड जो है वो 1 मिनट का कितना पार्ट है, कितने फ्रैक्शनल टर्म में. सो वी विल डिवाइड 90 by 60. वाई? बिकॉज 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स. आपके 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स. सो अगर आप सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आप करेंगे 60 से डिवाइड. क्लियर? 90/60 इज इक्वल्स टू 0 0 कैंसिल, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6, so 3/2. ओके, सो 90 सेकेंड्स आर 3/2 ऑफ अ मिनट. 3/2 पार्ट होगा आपका 90 सेकेंड्स. ओके, 90 सेकेंड्स आर 3/2 पार्ट ऑफ अ मिनट. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, 80 पैसा. क्लियर? यू हैव टू फाइंड आउट दैट 80 पैसा इन रिलेशन विद रुपीज़. ओके, 80 पैसा 1 रुपये का कितना पार्ट है. सो अगेन वी नो 1 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 100 पैसा. सो 80 पैसा इज इक्वल्स टू 80/100. 0 0 कैंसिल, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10. सो आवर आंसर इज 4/5. ओके, सो 80 पैसा is 4/5 part of 1 rupees. Okay. Now our next part number 7 is 8 hours. 8 hours जो हैं एक दिन का कितना पार्ट होंगे. So students, we already know within a day we have 24 hours. एक दिन में 24 हार्स होते हैं. सो 8 हार्स एक दिन का कितना पार्ट होगा. 8 को करेंगे 24 से डिवाइड बाय 24 बिकॉज विद इन अ डे वी हैव 24 हार्स. हम एक दिन में हमारे 24 हार्स होते हैं. तो 8 हार्स एक दिन का कितना पार्ट होगा ये निकालने के लिए हम उसे 24 से डिवाइड करेंगे. सो 8 1 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24. सो आंसर इज़ 1/3. सो दैट इज़ 1/3 ऑफ अ डे. Now next question is 1 day of a week. एक दिन एक वीक का कितना पार्ट है. तो हमें पता है कि 1 वीक में होते हैं 7 डेज. क्लियर? एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7. ओके, सो 1 डे एक वीक का कितना पार्ट होगा. दैट इज़ 1/7. क्लियर? Now our next question is 1/7 of 21 grams. 1/7 of 2100 grams in relation with kg. ओके, 2100 ग्राम्स का 1/7 पार्ट 1 kg का कितना पार्ट होगा. सो पहले हम इसे सॉल्व कर देते हैं. 1/7 इज़ 1/7 मल्टीप्लाई बाय 2100. 7 3 ज़ा 20 एंड 2 0 के 0. सो दैट इज़ 300 ग्राम्स. ओके, सो 1/7 ऑफ 2100 ग्राम्स इज इक्वल्स टू 300 ग्राम्स. अब हम 300 ग्राम्स के रिलेशन निकालेंगे केजी के साथ. सो वी ऑलरेडी नो 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स. सो 300 ग्राम इज इक्वल्स टू 300/1000 kg. क्लियर? सो 2 zeros कैंसिल. हेयर वी हैव 3/10. आपका नोमिनेटर में 3 बच गया है, डिनोमिनेटर में 10. सो दैट इज़ 3/10 kg. इट मीन्स 300 ग्राम्स जो हैं 1 kg के 3/10 पार्ट होंगे. ओके, सो हेयर इज़ योर आंसर 3/10 ऑफ अ kg. 1/7 ऑफ 2100 ग्राम्स इज़ 3/10 ऑफ अ kg. Now come to the next and the last question, and here you have one price list. Okay, Rihanna wants to buy fruits according to the list given by her mother. She took at the price list board. Okay, तो उनकी मम्मा जो हैं उनको कुछ लिस्ट प्रोवाइड करती हैं और वो कहती हैं कि आप ये सामान मार्केट से परचेज़ करके आओ. अब मार्केट में जो है हर सामान की, हर फ्रूट्स की जो है क्या है, लिस्ट लगी है. और हेयर इज़ योर लिस्ट. एप्पल्स 50 रुपीज़ पर kg, चेरीज़ 30 रुपीज़ पर kg, बनाना 40 रुपीज़ पर kg, मैंगो 60 रुपीज़ पर kg, पीयर्स 20 रुपीज़ पर kg एंड ग्रेप्स 80 रुपीज़ पर kg. सो यहाँ पे 1 किलो के आपको क्या है प्राइस प्रोवाइड किए गए हैं. इस पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं. क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन दिस डाटा. ओके, आपको
आपको इस डाटा पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। सो हियर इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच ऑफ 3 kg बनाना कॉस्ट। ओके, 3 kg बनाना का कॉस्ट क्या होगा। सो स्टूडेंट्स एज यू कैन सी हियर 1 kg बनाना इज़ 40 रुपीज़, सो 3 kg होगा आपका 3 × 40 एंड दैट इज़ 120 रुपीज़। ओके, सो आपको यहाँ मेंशन करना है 120 रुपीज़ का। 1 kg 40 का है तो 3 kg होगा 40 × 3 दैट इज़ 120 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट इज़ how much does 1/4 kg of grapes cost। ओके, सो 1 kg का 1/4 पार्ट जो है आपको वो फाइंड आउट करके ग्रैप्स का कॉस्ट निकालना है। सो 1 kg ग्रैप्स कॉस्ट 80 रुपीज़। ओके, 1 kg ग्रैप जो है वो 80 रुपीज़ का है। सो 1/4 kg कितने का होगा, 1/4 ऑफ 80 एंड दैट इज़ 20 रुपीज़। ओके, सो आवर आंसर इज़ 20 रुपीज़। क्लियर, जब 1 kg 80 रुपीज़ का है सो आपका 1/4 kg होगा 20 रुपीज़ का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ शी वांट टू बाय 2.5 kg ऑफ एप्पल्स हाउ मच विल इट कॉस्ट। ओके, सो 1 kg जो एप्पल्स हैं वो आपके हैं 50 रुपीज़ के। सो 1 kg जो एप्पल्स हैं वो हैं आपके 50 रुपीज़ के। क्लियर, सो आपके 2.5 kg होंगे। सो दैट इज़ योर मिक्स फ्रैक्शन। आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। 2 × 2 = 4। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 = 4 और फिर उसमें ऐड करेंगे हम 1। सो 2 × 2 = 4 एंड 4 + 1 5। सो आंसर इज़ 5/2। सो आप 2.5 को सिंपल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 5/2। क्लियर, सो 5/2 ऑफ 50। क्लियर, 1 kg आपका 50 का है। क्लियर, और आपको लेना है 5/2 kg, तो आपको क्या करना होगा, 5/2 पार्ट निकालना होगा 50 का। क्लियर, आप उसको करेंगे मल्टीप्लाई। अगर आप 1 kg लेंगे तो आप करेंगे 50 × 1, अगर आप 2 kg लेंगे तो आप करेंगे 50 × 2, तो अगर आप 5/2 kg ले रहे हैं तो आप करेंगे 50 × 5/2। क्लियर, सो अगेन जस्ट डिवाइड इट, 2 × 1 = 2 एंड 2 × 25 = 50 एंड 55 = 125। क्लियर, एक बार से दोबारा से समझ लेते हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 25 = 50, 25 multiplied by 5 and that is equals to 125. Clear? So the cost of 2.5 kg apples are, so the cost of 2.5 kg apples are 125 rupees. Okay, 50 रुपीज़ का आपका 1 kg एप्पल है तो आपके 100 रुपीज़ के 2 kg होंगे एंड 2.5 kg के लिए आपको पे करने होंगे 125 रुपीज़. Now come to the next part and that is how much does 2.5 kg of pear, आपके जो pear हैं वो 2.5 kg pears कितने के आएंगे. So student 1 kg pear जो है वो आपका 20 रुपीज़ का है. क्लियर, सो आपके 4.5 kg कितने के आएंगे, आपको ये फाइंड आउट करना है. क्लियर, सो आपका जो 4.5 kg है आप उसको लिख सकते हैं सिंपल फ्रैक्शन में 2 × 4 = 8 एंड 8 + 1 9, सो 9/2. क्लियर, 2.5 kg को आप सिंपल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 9/2 kg. सो जब आपके 1 kg 20 का है तो आपके 9/2 kg कितने के होंगे, 20 × 9/2. That is 2 times 20 and 10 9s are 90. Clear, it means the cost of 4.5 kg pears are 90 rupees. Clear, so the answer is 90 rupees. आपको नोटबुक में सेम ऐसे ही क्वेश्चंस लिख के उनके आगे आंसर्स को मेंशन करना है इसी तरीके से सॉल्व करके. क्लियर, students, that is the last part of your question and here you have to make a price chart. okay, आपको एक बिल तैयार करना है. so here you have to prepare a bill. okay, आपको यहाँ पे कुछ अमाउंट्स गिवन है. okay, इसके अकॉर्डिंग आपको बिल को प्रिपेयर करना है. so let's start. 2 kg of चेरीज़. ओके, सो आइटम्स जो है यहाँ पे है चेरी, आप यहाँ पे मेंशन करेंगे चेरी. ओके, 1 kg जो आपकी चेरी है वो है 30 रुपीज़ की. क्लियर, 1 kg चेरी है आपके 30 की, तो 2 kg कितने की होगी, 30 × 2 = 60, तो इनका अमाउंट होगा
60। क्लियर। जो डायरेक्ट होंगे हम उनको डायरेक्ट कर लेंगे, जो क्वेश्चंस डायरेक्ट हो सकते हैं हम उसको डायरेक्ट मेंशन करेंगे, और जो सॉल्व करने के लिए हैं वो आपको मैं सॉल्व करके यहाँ पे बताऊँगी। नेक्स्ट इज़ 3.5 kg ऑफ मैंगोज़। सो मैंगोज़ जो हैं वो हैं आपके 60 रुपीज़ के। क्लियर। मैंगो जो है आपके 60 रुपीज़ के। सो आप यहाँ पे लिखेंगे मैंगो, प्राइस में मेंशन करेंगे 60। ओके, 60 रुपीज़ पर केजी है ना आपका। सो you have to write here 60 and you have to find out the amount of 3.5 kg of mango। क्लियर। आपको 3.5 kg मैंगो का निकालना है। सो 3.5 को आप लिख सकते हैं 2 3 6 and +1 that is 7/2। क्लियर। सो 3.5 is equals to 7/2। ओके, सो 7/2 आपको केजी मैंगोज़ लेने हैं। 1 kg आपका 60 का है, तो 7/2 कितने के होंगे? 2 1 ज़ा 2, 2 30 ज़ा 60 एंड 37 ज़ा 210। तो आपके 3.5 kg आएंगे 210 रुपीज़ के। क्लियर। आप इसको दोबारा से समझ लेते हैं, हम इसे दोबारा से समझ लेते हैं। आइटम है आपके मैंगो, प्राइस है 1 kg मैंगो का 60, बट आपको लेने हैं 3.5 kg को अगर आप सिंपल फ्रैक्शन में लिखेंगे तो वो होगा 7/2। ओके, 2 3 ज़ा 6 +1 7। अब 7/2 kg 60 रुपीज़ पर kg के अकॉर्डिंग कितने के आएंगे? 2 1 ज़ा 2, 2 30 ज़ा 60 इंटू 30 दैट इज़ इक्वल्स टू 210। क्लियर। सो आपके 1 kg 60 रुपीज़ पर kg के अकॉर्डिंग 3.5 kg मैंगोज़ जो होंगे वो होंगे 210 रुपीज़ के। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज़ 1/4 kg ऑफ एप्पल। सो आप अमाउंट में लिखेंगे एप्पल। ओके, 1 kg ऑफ एप्पल इज़ इक्वल्स टू 50। आप प्राइस चार्ट को चेक कर लेंगे। क्लियर। वहाँ पे 1 kg जो एप्पल है उसका अमाउंट है 50 रुपीज़। सो आपके 1 and 1/4 kg एप्पल का जो कॉस्ट होगा वो क्या होगा? सो आप 1 and 1/4 को लिख सकते हैं 4 1 ज़ा 4 +1 दैट इज़ 5/4। ओके, 1/4 इज़ इक्वल्स टू 5/4 एंड आपके 1 kg एप्पल का अमाउंट है 50। क्लियर। नाउ 50 5 ज़ा 250। ओके, 5 5 ज़ा 25 एंड 0 का 0, 250/4। सो स्टूडेंट्स 250/4 इज़ इक्वल्स टू 62.5। ओके, सो आपके 50 रुपीज़ पर kg के अकॉर्डिंग आपके 1 किलो 1/4 kg एप्पल्स का जो प्राइस होगा वो होगा 62 रुपीज़ 50 पैसा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज़ 1 kg ऑफ चेरीज़। तो आप आइटम में लिखेंगे चेरीज़। प्राइस आपका 1 kg चेरी का है 30 रुपीज़। सो आप 1 kg खरीद रहे हैं तो अमाउंट भी होगा 30 रुपीज़। क्लियर। नाउ हाफ kg ऑफ ग्रेप्स। सो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे ग्रेप्स। ओके, तो कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज़ 80 रुपीज़। आपका 1 kg जो ग्रेप्स है वो 80 रुपीज़ का है। सो हाफ kg कितने का होगा? हाफ ऑफ 80 इज़ 40। क्लियर। आपके आधा किलो जो ग्रेप्स होंगे वो होंगे 40 रुपीज़ के। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट 3/4 kg ऑफ बनाना। सो इन प्लेस ऑफ आइटम यू विल राइट हियर बनाना। ओके, प्राइस ऑफ 1 kg बनाना इज़ 40 रुपीज़। ओके, एंड यू कैन राइट 3/4 इज़ 4 4 ज़ा 16 एंड 16 + 3 दैट इज़ इक्वल्स टू 19। सो यू कैन राइट हियर 9। So you can write it 19/4। So 19/4 kg बनाना आपके होंगे 19/4 इंटू 40 रुपीज़। ओके, 1 kg आपका 40 का है तो 19/4 कितने का होगा? 19/4 इंटू 40, 4 10 ज़ा 40। सो 19 10 ज़ा 190। क्लियर। सो 40 रुपीज़ पर kg के अकॉर्डिंग आपके 4 kg एंड 3/4 पार्ट आपके 4 and 3/4 kg जो बनाना होंगे वो होंगे आपके 190 रुपीज़ के।
क्लियर। तो स्टूडेंट्स हम सारी चीज़ों को साथ में लिख के एक बिल को प्रिपेयर कर लेते हैं। सो स्टूडेंट जस्ट प्रिपेयर वन बिल। ओके, आपका फर्स्ट अमाउंट था चेरी, क्लियर। आपके 1 kg चेरी का प्राइस था 30, ओके। एंड आपके 2 kg जो चेरी थे वो आ रहे थे 60 रुपीज़ के। सेकंड था आपका मैंगो, ओके। एंड 1 kg मैंगो जो हैं आपके वो हैं 60 रुपीज़ के। सो आपके 3.5 kg जो मैंगो आ रहे थे वो आ रहे थे 210 रुपीज़ के। थर्ड जो आइटम आपका था वो थे आपके एप्पल्स, ओके। एंड एप्पल्स का जो कॉस्ट है वो है 50 रुपीज़ पर kg। सो आपके 1/4 kg जो एप्पल्स थे उनका प्राइस आपका आ रहा था 62 रुपीज़ 50 पैसा, ओके। सो द अमाउंट ऑफ 1/4 kg ऑफ एप्पल्स आर 62 रुपीज़ 50 पैसा। नेक्स्ट आइटम इज़ अगेन चेरी, ओके। सो जस्ट राइट हियर चेरी, ओके। आपको सी नहीं लिखना है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको यहाँ पे पूरे चेरी मेंशन करना है। द प्राइस ऑफ 1 kg चेरी इज़ 30, ओके। और आप 1 kg ही ले रहे हैं, सो अगेन हियर इज़ 30। नेक्स्ट इज़ ग्रेप्स, सो मेंशन हियर ग्रेप्स एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज़ 80, so the cost of half kg grapes is 40, and the last item is banana, so mention here banana. Cost of 1 kg banana is 40 rupees, so the cost of 3 and 3/4 kg of banana is 190 rupees, okay। और ये कॉस्ट कैसे आई है ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। नाउ फाइनली हम इसे करेंगे ऐड, क्योंकि हमें निकालना है टोटल बिल, क्लियर। हमने कितने का रिहाना ने कितने की शॉपिंग करी है हमें यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है। सो आप जब इन सारे अमाउंट्स को टोटल करके देखेंगे तो आपका फाइनल आंसर जो होगा वो होगा 592 रुपीज़ 50 पैसा, क्लियर। आप ज़रूरी नहीं है आप इनको सबको एक संग ऐड करें, आप 2 करके ऐड कर सकते हैं या फिर आप 3 करके भी इनको ऐड कर सकते हैं, क्लियर। सो आप फाइनल आंसर इज 592 रुपीज़ 50 पैसा। इट मीन्स उन्होंने सारे फ्रूट्स जो परचेज किए हैं उनका टोटल कॉस्ट है 592 रुपीज़ 50 पैसा। So students, that is the last worksheet of your chapter parts and wholes. I hope you all are able to understand it with the help of this video, okay। One by one just pause your video and write out the answers and questions, okay। For proper understanding at least watch this video 2 times, okay। कम से कम आप इसको 2 बार देखिए, आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट इफ़ स्टिल यू हैव एनी डाउट, अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्लियर। दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, आप वीडियो को 1 by 1 पॉज करके इसे अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, क्लियर। एंड जो क्वेश्चंस को सॉल्व करके नहीं दिखाया गया है आपको वो भी नोटबुक में लिखने हैं, जस्ट लाइक योर लास्ट क्वेश्चन, ओके। That is your last question and you have to prepare this bill also in your notebook, okay। एंड इसे कैसे सॉल्व करना है मैं आपको वीडियो के एंड में बता चुकी हूँ। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस पूरी वर्कशीट में किसी भी पॉइंट में कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, आपको ये वीडियो की हेल्प से ये चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। एंड जस्ट कमेंट मी योर फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। स्टे होम, स्टे हेल्थी। बाय बाय।